बस मुझे होस्ट बना दीजिए सर। ओके, ठीक है। आज आप लोग का प्रेजेंटेशन है, तो किनका किनका प्रेजेंटेशन है बताइए, मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ। सृजन, अनम्यूट कर लो खुद को। सृजन, नेहा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नेहा, यस। अब अभी वापस से म्यूट मत कर लेना, फिर नहीं तो फिर से अनम्यूट करना पड़ेगा। और कौन है? ऋषि, अनम्यूटेड। सुजीत, ओके, सब हो चुके हैं अनम्यूटेड। एक सुजीत बचा है। ओके सुजीत, तुम्हारा भी हो चुका है। स्टार्ट करो। स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? नहीं तो मुझे करना पड़ेगा शायद वो अलाउ। रुको मैं करती हूँ, अलाउ कर। यस, स्क्रीन शेयर अलाउ कर दिया है। और बाकी के सारे स्टूडेंट्स अपनी वीडियो ऑन रखेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा नहीं लगता बार बार बोलने के बाद भी आप लोग ढीठ की तरह चुप बैठे रहते हैं। हम्म, मैं स्टार्ट हूँ। या यू कैन स्टार्ट। Good morning, ma'am, and my friends. This is Sujit Raj Soni. Firstly, I would like to thank Soni ma'am for this giving us this wonderful opportunity to present ourselves in front of you all. Today we are going present on executive function of management. Not talk about introduction of executive function of management. There is wide scope of management. The management varies in accordance of its use. Every organization has different function area management required for plan of activities, organization of resources. Executive functions are basically the management system of brain. Types of executive functions of management. Change. First number production management, second number marketing management, third number financial management, fourth number personal management. ठीक है। Now I am requested to my team members region. Please proceed to next slide. Thank you, Sujit. Now I will discuss about production management. Production simply means the creation of utilities. That is, when raw materials are converted into finished products. It brings together the 6 M's that in men, money, machines, materials, methods, and markets to satisfy the wants of the people. Production management also deals with decision making regarding the quality, quantity, cost of the production. It applies management principles to production. The main objective of production management is to produce goods and services of the right quality, right quantity, at the right time, and at minimum cost. It also tries to improve the efficiency. Production management is related with 5 P's: product, plant, process, program, and peoples. Now I will discuss about functions of production management. The functions are as follows: selection of product and design, selection of production process, selection of right production capacity, production planning, production control, quality and cost control, inventory control, and maintenance of replacement of machines. Now I will request to Rishi to explain marketing अब हम लोग को management. घर चलना होगा, घर चलना चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट। क्या अलाउ करना है? अच्छा, मैंने अनम्यूट तो कर दिया है। एक मिनट। 63। हाँ, अनम्यूटेड ऋषिराज। Thank you, Srijan. First of all, good morning, ma'am, and good morning, friends. Thank you so much to give this opportunity to represent the presentation. Now, don't waste time. Come to the point. I am discuss about marketing management. What is marketing management? Marketing management is the process of planning and executing the conception, pricing, and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and organization goal. Marketing management is the organization discipline which focus on the practically application of marketing orientation techniques and methods inside enterprises and organization and on the market management of firms, marketing resources and activities. They can be referred to the strategies, tool and analysis used in promoting a businesses. Now, businesses use marketing management techniques to identify opportunity for growth and connect effectively with new target markets. Now, there are many entities to work in marketing management, but basically 7 entities which help to growth and development. Marketing research, product planning and development, buying and assembling, selling, pricing, promotion, and advertising. Thank you, ma'am. Now I am over to Neha to complete the next point. Thanks, Rishi. First of all, I would like to thank Sony ma'am for giving me this opportunity. Now I am discussing about financial management. In simply, financial management is a part of business management. The financial management is responsible for the finance function of an organization. The objective of financial management maintain enough supply of funds for the organization, ensuring shareholders of organization to get good return of their investment, optimum and efficient utilization of funds, creating real and safe investment opportunities to invest in it. The role of financial management. Financial manager are responsible for the financial health of an organization. They produce financial reports, direct investment activities, and develop strategic and plans for the long term of financial goals of their organization. The financial management can be broken down in 3 major decisions or functions of finance. They are: first, the investment decision; second, the financing decision; and third one, the dividend policy decision. Financial management example for business or company include managing telephone cost, hiring a new employee, purchasing of facility, project budget, etc. Financial management example for individual include managing monthly budget, expenses, shopping, etc. There are various functions of financial management. First, formulation of objectives. Second, estimation of capital requirements. Third, determination of capital structure. Fourth, choice of resources of funds. Fifth, investment of funds. Sixth, disposal of surplus. Seventh, management of cash. And last one, financial controls. Now I am requested to my team member Sujit. Please proceed to the next slide. ओके, चेक। आप म्यूट कर लेंगे तो वापस से आप म्यूट हो जाएंगे सुजीत। लेट मी चेक। ठीक है सुजीत। Thank you, Neha. Now talk about personal management. Personal management is defined as an administrative specialization that focus on hiring and developing employees to become more valuable to the company. It is sometimes considered to be subcategory of human resources that only focus on administrative. Slide change. There are on analysis on executive function of management. Thank you so much, ma'am.
Okay, so we all are done with today's presentation. Anybody left for today? नहीं, ठीक है। तो वापस से ऑर्गेनाइजिंग पे चलते हैं हम लोग। अटेंडेंस बना लो क्या पहले? तुम लोग को अनम्यूट करना पड़ेगा लेकिन। जस्ट अ मिनट। चलो, मैंने सबको अनम्यूट करना, अभी जितने स्टूडेंट्स हैं मैंने आप सबको अनम्यूट करने का अलाउ कर दिया है। आई होप सब लोग अपने नाम और आईडी से ही एंटर किए होंगे। ठीक है, मैं नाम बोलती हूँ, आप लोग बस अटेंडेंस बोलते जाइएगा। 1 2 1 इज अगेन एब्सेंट। क्या प्रॉब्लम उसके साथ? अभी वो ठीक है? किसी को नहीं मालूम उसके बारे में? बुलेट नो मैम। ठीक। 2 3 4 मैम 5 प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम 5 प्रेजेंट मैम। 7 8 प्रेजेंट मैम। 9 ओके, 8 प्रेजेंट है। 9 10 11 12 13 11 मैम। प्रेजेंट मैम। इतनी देर बोल दिया करो टाइम से। 11 नीरज कुमार। 11 के बाद 13 ओके। 14 मैम। 15 यस मैम। बंद कर लो। जहां से आवाज आ रही हो अपने आप को म्यूट करो प्लीज। 15 यस 16 16 मैम। यस मैम। 17 प्रेजेंट मैम। 18 यस मैम। 19 20 यस मैम। 20 है ना? 21 22 यस मैम। 20 22 23 24 25 यस मैम। यस मैम। दो यस मैम। किसके लिए यस मैम? मैम 25। 25 ठीक है। 23 20 तो तुम 23 के टाइम में कहाँ रहते हो? मैं कितने देर पॉज करके आगे बोलती हूँ। 26 ओके। 26 27 प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। 27 प्रेजेंट यस मैम। ओके। 28 29 प्रेजेंट मैम 29। ओके। 30 31 प्रेजेंट मैम। 32 प्रेजेंट मैम। 33 34 Present, ma'am. 35 36 36 37 38 प्रेजेंट मैम। 38 yes यस मैम। 39 39 प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट 40 मैम। ठीक है। 40 41 प्रेजेंट मैम। 42 प्रेजेंट मैम 41 is 42 present 42 प्रेजेंट मैम 43 44 प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम 43 भी है क्या? आकाश आकाश है क्या? ओके ठीक है। 45 प्रेजेंट मैम। Present, ma'am. 46 46 47 यस मैम। 48
49, 50, Ma'am. Yes, ma'am. 49%, ma'am. 49. Okay. ठीक है. 49 and 50 is present. 51, 52, Present, ma'am. 53, 54, 55, 55, 56, Present, ma'am. 57, 57, 58, Present, ma'am. 59, Present, ma'am. 60, 61, 61, 62, Present, ma'am. 63, Present, ma'am. 62 present. 63 है क्या? Yes, ma'am. Present, ma'am. Ma'am, 62 present. हाँ ठीक है, समझ में आ गया. ओके. 64, Yes, ma'am. 65, 64, Present, ma'am. 65. Yes, ma'am. 64. ठीक है. 65 है क्या? Yes, ma'am. 66, 66, 67, 68, 69, 70, 70, Yes, ma'am. 71, 20. Yes, ma'am. 72, Yes, ma'am. 73. Ma'am, 72. हो गया. 73, 74, 75, 75, 76, 77, 77, 78, 78, 28. okay, 79, Present, ma'am. 80, 81, 82, Present, ma'am. 83, 84, 85, 86, 87, 88, Present, ma'am. ओके. 87 and 88 दोनों का बना दिया मैंने. 89, 90. Present, ma'am. 90 is present. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it. ठीक है. 89, 90, 91, Yes, ma'am. 90, 91, Yes, ma'am. 92, 93, 94, 95, Present, 96, 95 is Present, present. ma'am. Okay. Ma'am, 96 96. is present. 97, 97, 98, 99, 77, ma'am. बना दिया. 99, 100, 98 present, ma'am. 100, 101, 102, 103, 104, Yes, ma'am. 105, Present, ma'am. 106, Yes, ma'am. 107, Present, ma'am. 108, 109, 10, 110, 111, 112, Present, hun- ma'am. 111. okay, 12, 113, 114, 115. Tell 115 to join always in the format whatever is given. Today again she is joining without any roll number and code. That's why I removed her from the waiting room. 77 छूट गया मैम, डिस्कनेक्ट नहीं छूटा है, मैंने देख लिया था तुम वेटिंग रूम में थे, मैंने बना दिया है. मोहम्मद अंसारी नाम है तुम्हारा, राइट? 21 मैम डिस्कनेक्ट हो. 21 मैं एक बार देख लेती हूँ. चलो ठीक है, अभी हम लोग शुरू करते हैं वापस से अपना पीछे जहाँ पे कल रुक गए थे वहां पे. मैं एक बार शेयर करूंगी, तुम लोग मुझे बता देना कि कहाँ तक हो गया था. 71 मैम. नाम बताओ अपना.
आशुतोष बनाती है रोल नंबर 21। बना हुआ है 71। 21 मैम। साफ बन गया, अनुकूल। चले 1 मिनट। ये स्क्रीन शेयर कर दिया है मैंने। हाँ, कहाँ तक हो गया था मुझे कोई बता सकते हैं? मैंने 2-3 बच्चों को अनम्यूट किया है, शायद गुलशन, आदित्य, फ्रेंड्स, आप लोग को शायद मैंने अनम्यूट किया है, अलाउ। बस मुझे ये बताइए कि लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं। ये सब अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से शुरू होना यस मैम, यहीं से रीड कर। हाँ ठीक है, ओके। अपने आप को भी म्यूट मत करना, अगर आसपास शांति है तो रहने दो अनम्यूटेड, ये तो मुझे वापस से करना पड़ेगा। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मैं बता रही हूँ, अगर किसी को क्वेश्चन आए तो आप चैट कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यानी ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, किसी एक्टिविटी को, किसी भी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है, और उसके लिए सबसे पहले क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है ना, आपको उस कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके उसको डिवाइड करना होता है। तभी हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग मींस लिस्टिंग डाउन द एक्टिविटीज एंड असाइनिंग दोज एक्टिविटीज टू द कॉम्पिटेंट पर्सन। तो आप क्या करिएगा? अभी एक्टिविटीज, उस गोल को अचीव करने के लिए जो जो काम करना है उसको आप डिवाइड करके लिख लीजिएगा, और फिर किसी वैसे इंडिविजुअल को वो असाइन करिएगा वो टास्क जो उस काम को करने में कॉम्पिटेंट हो, सो दैट कि इंटायर वर्क को हम एक्शनेबल बना सके, उस पर काम किया जा सके, और कंप्लीटली जब वो काम पूरा हो जाएगा तो आपका एक होल वर्क फिनिश हो जाएगा, एक पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो वर्क को पीसेस में ब्रेक डाउन करना और हर एक पार्ट ऑफ दैट वर्क को किसी एक कॉम्पिटेंट पर्सन को असाइन करना और उसको काम लेना, इसी को हम डिवीजन ऑफ वर्क कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ये? नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, अगर ठीक है आपने एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को 50 यूनिट किसी भी चीज का प्रोड्यूस करके मार्केट में, लोकल मार्केट में सेल आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए उनको काम क्या करना पड़ेगा? रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, मशीन परचेज करना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस अवस्था में रखना पड़ेगा, सामान को अब फाइनली प्रोडक्शन प्रोसेस पे डालना पड़ेगा, प्रोडक्शन प्रोड्यूस फाइनल गुड्स जब प्रोड्यूस हो जाएंगे तो उसको पैकेजिंग और प्राइसिंग करना पड़ेगा, और वापस से उसको मार्केट में ले जा करके बेचना पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग प्रमोशंस करना पड़ सकता है, नहीं करेंगे तो आपको कम से कम कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा अपने। इसके अलावा जो पर्सनल सेलिंग होता है, उसी मेथड से आप कम्युनिकेट करेंगे सोसाइटी में या उस लोकल मार्केट में कि आप क्या बेच रहे हैं और क्या इसका काम है, क्या फीचर्स है इसके। तो अभी इतने सारे काम हो गए। अगर आपका सिर्फ एक गोल है कि हमको ये पर्टिकुलर 50 यूनिट बेच करके इस लोकल मार्केट में बेच देना है और हर यूनिट 10 रुपया प्रॉफिट कमाना है, सिंपल है आपका ये काम। इस काम को करने के लिए भी आपने क्या किया? तो परचेजिंग किया, ठीक है ना, उसको फिर प्रोडक्शन में लगाया, उसके बाद फिनिश गुड को आपने पैकेजिंग किया, लेबलिंग किया, एंड देन आपने उसको मार्केट में वापस से सेल करने के लिए, यानी आपने 6-7 एक्टिविटी कर लिया। अगर आप बहुत छोटे लेवल पे भी ये काम करना चाहते हैं तो भी आपने किया, तो सारा क्या होगा? आपके एक गोल को इंटायरली उस ऑब्जेक्टिव्स को, उस गोल को अचीव करने के लिए आपने उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया उसको आपने। अच्छा ठीक है, हमने तो 10 रुपीज प्रॉफिट की बात की थी, पर पीस हमको 10 रुपया प्रॉफिट भी कमाना है, यानी आपका एक अब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी हो गया जो अकाउंट्स मेंटेन करेगा कि क्या 10 रुपए हम पर हेड कमा पाए या नहीं कमा पाए। ओवरऑल जो हमारा खर्चा था उसमें हमारा कुछ
प्रॉफिट एडिशन हुआ या हम लॉस में चले गए, ठीक है। तो एक अकाउंटेंसी का भी काम आपका उसमें आ गया। तो इस तरीके से हम काम को डिवाइड करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन क्या है, ये जो अकाउंट्स किया, ये जो हमने रॉ मटेरियल का परचेजिंग किया, ये जो हमारा प्रोडक्शन शेड्यूलिंग तैयारी है, क्या इनके बीच में बिना कोऑर्डिनेशन के ये काम पॉसिबल है? पॉसिबल है इनके बीच में? नहीं पॉसिबल है, राइट? नो मैम, नहीं पॉसिबल। हाँ, नहीं पॉसिबल इसलिए है क्योंकि अगर रॉ मटेरियल खरीदने का टाइम कब का सही है और हमारा प्रोडक्शन शेड्यूलिंग कब का होना है, ये अगर हमारे बीच में कंफ्यूजन रहेगा तो रॉ मटेरियल आ भी जाएगा अगर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के बाद, तो फायदा क्या होगा? कुछ फायदा होगा? नहीं होगा, है ना। आपके घर से गेस्ट जा चुके हैं, अब आप खाना बनाएंगे तो खाएंगे कौन? आप ही लोग खाएंगे, गेस्ट तो जा चुके हैं भूखे, कोई फायदा नहीं। देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, कि कब का प्रोडक्शन शेड्यूलिंग किया हुआ, कब का लोग तैयार है फ्लोर पे काम करने के लिए, सब लोग अपना अपना पोजीशन ले लिए हैं। देयर शुड बी रॉ मटेरियल, देयर शुड बी एवरीथिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एट दैट पर्टिकुलर वर्क स्टेशन, ताकि काम को पूरा किया जा सके, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, यानी डिफरेंट या फिर डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है ना। आपस में सामंजस्य और सहयोग होना चाहिए ताकि आप उस काम को आगे बढ़ा सके, कर सके। तो कोऑर्डिनेशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन, ठीक है। प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन का क्या मतलब हुआ? कोई डिफाइन कर सकता है? शशि, मैंने शायद आपको अनम्यूट कर रखा है, क्या आप डिफाइन करना चाहेंगे? प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन को एक्सप्लेन करना चाहेंगे? नहीं, और कोई? तुम कर सकते हो इसको गुलशन, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन को डिफाइन? चलो, मैंने सबको अनम्यूट करना अलाउ किया। कैन एनीबडी गिव दिस आंसर? हाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का कैसे पार्ट हो सकता है प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन? मैंने सबको अनम्यूट करना अलाउ किया है। कैन एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर दिस? एक बार मैं पॉइंट फिर से दिखाऊं, ये लो, थर्ड नंबर, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन। इसको डिफाइन कर सकते हैं? क्या हो गया चंद्रभूषण? नहीं मैम, अभी तो याद नहीं आ रहा है। प्लूरल का मतलब याद है कि वो भी भूल गए? सिंगुलर और प्लूरल मतलब मैम एक से ज्यादा। बस। तो क्या बिना एक से ज्यादा के हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग? तुम अकेले हो, तुम्हारे सर पे सारा काम है, तो तुम कर लोगे ऑर्गेनाइजिंग का काम? बांट लोगे, डिवीजन ऑफ वर्क कर लोगे, कोऑर्डिनेशन कर लोगे? अपने आप में क्या कोऑर्डिनेशन, क्या डिवीजन ऑफ वर्क, राइट? देन यू प्रायोरिटाइज योर टास्क। जब तुम अकेले हो तो तुम प्रायोरिटाइज करोगे टास्क को, प्रायोरिटी के बेसिस पर उसको 1 2 3 की पहले मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, प्रायोरिटी सेट करोगे। तुम ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते हो। दैट इज व्हाट सिंगुलर प्लूरल याद रहेगा ना, तो हमेशा ये पॉइंट याद रहेगा। प्लूरल मीन्स बहुवचन, यानी कि जब ज्यादा लोग रहेंगे तभी ऑर्गेनाइजिंग पॉसिबल है। बिना ज्यादा लोग के, एक से अधिक लोगों के हम ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि किसको हम क्या काम असाइन कर देंगे? कोई है ही नहीं असाइन करने वाला। इसीलिए कहा था कि जब जब ज्यादा लोग रहेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब टीम है या ग्रुप है, ग्रुप का मतलब मोर देन 1 पर्सन, 2 और मोर देन 2, ठीक है ना, इसको भी हम ग्रुप कह सकते हैं। तो कम ज्यादा लोग रहेंगे तभी आप डिवीजन ऑफ वर्क कर सकेगा, तभी आप उसको बांट सकिएगा कि तुम्हारा ये ड्यूटी है, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे लिए ये काम है। नहीं तो पॉसिबल नहीं है ऑर्गेनाइजिंग, राइट? So this is the another characteristic. इसको याद करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, ना तो चंद्रभूषण को, ना ही किसी और को, ठीक है ना। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, क्या बोलना चाहता हूँ। और एक बार उसको स्टोरी की तरफ समझ लो, स्टोरी की तरफ समझ लो, फिर कभी कुछ पढ़ना ही नहीं है, अपने मन से लिखना है। आप लोग के पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट है, पीपीएन में बहुत ज्यादा टाइम मत वेस्ट करिए। नेक्स्ट, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, हाउ कैन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, जो ग्रुप है हमारा
उसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि हमारे सिंपल काम था 50 यूनिट प्रोड्यूस करके लोकल मार्केट में बेचने का, सिंपल सा हमने अपना एक गोल या ऑब्जेक्टिव तय किया है। उसके लिए भी हमने अकाउंटिंग के लिए अकाउंट्स रजिस्टर मेंटेन कर रखे हैं। परचेजिंग के लिए एक आदमी को रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए लाते हैं तो किसी को बोलते हैं मशीन का देख लो, मशीन कहाँ से क्या लेना है, क्या टूल्स एंड इक्विपमेंट्स लगेगा वो तुम देख लो। या फिर किसी को हम बोलते हैं कि तुम अभी प्रोडक्शन जब होगा तो उसको संभालो, जो प्रोडक्शन को हैंडल करने में सफिशिएंट उनको प्रोडक्शन के लिए बोलेंगे, जो पैकेजिंग करने में सफिशिएंट उनको पैकेजिंग, लेवलिंग, काम को नाम देने का, जो प्रोडक्ट को जो नाम देने का काम होता है वो कोई करेगा, एंड देन उसको प्रमोट और कम्युनिकेट करके मार्केट में सेल करने का काम करेगा। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? 50 यूनिट्स को सेल करके हर यूनिट 10% प्रॉफिट कमाना, राइट, या 10 रुपीज पर पीस प्रॉफिट कमाना, ये है कॉमन ऑब्जेक्टिव। इसी के लिए इतना सारा जो 5-6 लोग, मान लो 6-7 लोग ही हैं, तो 6-7 लोग उसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं ना, तो कॉमन ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल तो है 8-10 लोग तो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी का कुछ ऑब्जेक्टिव है, किसी का ऑब्जेक्टिव कुछ अपना है, ठीक है ना, किसी का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, किसी का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। तो क्या ये भी ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो देर हो सकता है क्या डिफरेंट ऑब्जेक्टिव से लोग अगर एक जगह आए हो तो क्या वो आपके एक गोल को अचीव करने में मदद कर सकते हैं? नो मैम। नहीं कर सकते। वो अपना अपना उनका कुछ पर्पस रहेगा, वो भी पर्पस वो अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, डाउटफुल हो जाएगा फिर तो। आपके क्रिकेट में कोई अपने ही पर्पस से आए कि इस बार हमको इतना विकेट लेकर के जाना है या फिर इतना रन बना के जाना है, बाकी टीम का क्या होगा उससे तो कोई मतलब नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? टीम तो चली ही जाएगी, उसका भी पता नहीं क्या होगा, वो प्लेयर भी अच्छा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी में, इसका भी कोई पता नहीं चलेगा। ठीक है, मोहम्मद रियान शायद आप बहुत लेट से ज्वाइन किए हैं, मैंने आपको देखा है अटेंडेंस के बाद आपने ज्वाइन किया है, तो इतना लेट से किस खुशी में ज्वाइन करते हैं आप? अटेंडेंस बनाने के लिए? नाउ नेक्स्ट, वेल डिफाइंड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेल डिफाइंड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम को बांटते हैं, ठीक है ना, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका काम, सबका जो जिम्मेदारी है वो हमने वेल डिफाइंड कर दिया है, सो दैट लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और अगर वो काम करते हैं तो उनको उसका क्रेडिट मिला, और अगर वो नहीं करते हैं तो क्या मिले, उसके लिए उनको जिम्मेदार, लायबल ठहराया जा सके कि नाउ यू आर लायबल ऑफ नॉट परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, और इस चीज की वजह से पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नुकसान हुआ ये हुआ है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? एक इक्वालिटी होना चाहिए। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम देते हैं तो उसके बीच में ये दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए? एक हम लोग एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना बड़ा ऑथोरिटी, उतनी ज्यादा ऑथोरिटी हम दे सकते हैं, और वेल डिफाइंड होना चाहिए ताकि कोई इस ऑथोरिटी को या मिसयूज नहीं कर सके और कोई ये नहीं बोल सके कि मुझे नहीं मालूम था, ये काम मुझे असाइन किया गया है या कोई और कर लेगा। ठीक है ना, अगर हमने नाम लेकर के बोला है कि ये काम चंद्रभूषण को करना है या ये काम गुलशन को करना है या काम उत्तम को करना है, तो दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं सीधा बोल दूं आप में से कोई कर लीजिएगा, देन देयर इज नो क्लियरली डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। फिर कल को जब मैं पूछूं कि किसी ने किया है तो बोलेंगे मैम आपने मुझे तो नहीं बोला था, मुझे लगा फलाना कर लेगा, फलाना को लगेगा कि कोई और फलाना कर लेगा, बट किसी ने नहीं किया, राइट। तो नेम वाइज, पोजीशन वाइज, डिजिग्नेशन वाइज ड्यूटी क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. क्लियर मैम। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप? रोल्स, पोजीशंस और जो भी आपके डिजिग्नेशन है उसका एक रिलेशनशिप है, फॉर्मल रिलेशनशिप क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी असाइन करने का मतलब है कि यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है? सीनियर एंड सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है, जूनियर और सीनियर का रिलेशनशिप है। किसी के पास अधिक ऑथोरिटी है, अधिक टास्क है, तो वो अपने टास्क को अपने जूनियर को डेलीगेट करता है और सेम अमाउंट में ऑथोरिटी भी डेलीगेट करता है कि आप इसको काम कर सके। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? फॉर्मल एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं सीनियर सुपीरियर या फिर ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को क्रिएट करना। ठीक है,
ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, यही 5 पॉइंट है, इसमें कुछ भी याद करने जैसा नहीं है। आप बस का जो मेन है वो याद रखिए। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेशन,